Hello beta, how are you all? I hope all of you are fine and safe at your home enjoying your studies. I'm Sekhar Prajapati. Beta, today we are going to fill the book exercise of the book grammar, that is for 7th and 8th, both the classes. We are going to fill the book exercise. This is the video that is useful for both the classes because the topics are somewhere same and the solution that we took place of the book exercise questions would be same for both the classes. Although we are going to discuss the question of the both the classes, but the students of both the classes will watch the solution for both the for 7th and 8th both the classes. Okay beta, as 8th will be seeing what will be there what are we doing with 7th book exercise, and 7th students would see what will be there in 8th class book exercise. Okay, and then you will be concluded what is the difference between both the classes. Okay beta, so first of all we are going to cover the book exercise that is based on the what beta, sentence. This is the this is the chapter of 7th class grammar, पेज नंबर 7 बेटा, पेज नंबर 7 ओपन कर लीजिए आप अपनी नोटबुक में. फर्स्ट क्वेश्चन कहता है रीअरेंज द यस rearrange the group of words given below to form declarative sentences. Remember to use punctuation marks. ये कह रहा punctuation marks का भी use करना है. Punctuation marks means that is full stop, comma, whatever is needed over there. Warm, the weather, sunny and is. The weather is warm and sunny. So we have to make the useful sentences from all these group of words. हमें क्या एक सेंटेंस बनाना है प्रॉपर. जैक एंजिल वेंट अप टू द हिल, वेंट अप द हिल. ठीक है. हम्प्टी फेल एंड ब्रोक हिज हेड. द फैट पंपकिन रोल डाउन बिग हिल, रोल डाउन बिग हिल. आई नो योर सिस्टर वेल, आई नो योर सिस्टर वेल. नेक्स्ट, रीअरेंज द ग्रुप्स ऑफ वर्ड. बट बेटा rearrange the groups of word given below to form exclamatory sentences. Remember to use punctuation marks. punctuation marks को use करना हमें remember है. ठीक है. Sight what lovely is mean what a lovely sight, what a lovely sight it is. ये क्या है बेटा? These are the yes, what a lovely sight it is. This is what बेटा punctuation mark. This is what punctuation, that is exclamation, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? exclamation mark. ठीक है. So it shows the exclamation, it shows the yes sudden feelings or what, or the yes wonder that is being occurred by what, occurred by any subject in a sentence. So what is this? This is what these sentences shows what some sudden feelings are felt by the subject. Next is what a tall tree is, what a tall tree it is. How smart of her, how smart of her. Number 4th, what idea and what an idea. Next is how, oh horrible. तो उसे क्या करेंगे हम? ये सेंटेंस देखिए ध्यान से. इस सेंटेंस में मैंने ये वर्ड पहले लिखा है. एक्चुअली द मोस्ट ऑफ द exclamatory sentences are much pretty, are much good in such kind of form. जैसे oh exclamation mark, then how horrible, full stop. Oh how horrible. Okay, next page, that is page number beta 8, page number 8 7th class. Rewrite the declarative sentences given below as interrogative. नीचे जो sentences दिए हैं वो declarative ने किस में करना है आपको? interrogative में करना है. सेंटेंस क्या लिखा है? विनय ब्रोक द टेबल, विनय ब्रोक द टेबल. अब हमने इसे चेंज करना है किस में बेटा? इंटेरोगेटिव में. ध्यान से समझिए, इस सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है जो लिखा है वहां पर. बेटा जब तक सेंटेंस ये ना कहे स्पेसिफिकली कि हमने सेंटेंस का टेंस चेंज करना है,
वी शुड नॉट चेंज द टेंस, हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। दूसरा, हमने सेंटेंस को किस में चेंज करना है, इंटेरोगेटिव में। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन आपको जो एक क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करके दिखाया है, इसमें मैंने दोनों तरह से किया है, दैट इज व्हाट बेटा, डबल इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव। ठीक है, टू मेक यू अंडरस्टैंड। अब जो पहला सेंटेंस बेटा मैंने लिखा है, हु ब्रोक द टेबल, हु ब्रोक द टेबल, ये सेंटेंस अभी भी इनकम्प्लीट है। ठीक है, क्या होता है यहां पर, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाता है यहां पर, हु डिड ब्रेक द टेबल, टेबल को किसने तोड़ा, तो यहां पर मैंने डिड का यूज नहीं किया है। ठीक है बेटा, चलिए तो फिर देखते हैं दोबारा। बेटा फिर दूसरा सेंटेंस देखिए, बेटा सेंटेंस कैसा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, तो इट मीन्स सिंपल पास्ट है। अगर ये सिंपल पास्ट सेंटेंस है तो पास्ट की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। हमने पता चल जाना चाहिए, एज वी डिस्कस इन द टेंस सेगमेंट, हमने पता चल जाना चाहिए वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ यूज होती है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग फिर उसे चेंज करेंगे। तो बेटा पास्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है, दैट इज द डिड, तो क्या होगा, डिड विनय ब्रेक द टेबल। ठीक है, ये होगा इसका इंटेरोगेटिव। माई हाउस इज इन मालाबार हिल्स, ये स्टेटमेंट है, प्रेजेंट का स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट है, इसमें क्या करेंगे, इज माई हाउस इन मालाबार हिल। मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब से जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो किससे शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। नेक्स्ट, आई हैव कम टू मीट माई फ्रेंड, हैव आई कम टू मीट माई फ्रेंड, आई मेट हिम इन माई म्यूजिक क्लास, इन माई म्यूजिक क्लास। ध्यान से समझिएगा, मेट इज वोट, मेट यहां पर सेकेंड फॉर्म है, और अगर मेट यहां पर बेटा क्या सेकेंड फॉर्म है तो हमने क्या करना है, हमें इसे पास्ट में चेंज करना है। ठीक है, तो पास्ट में कैसे चेंज करेंगे, डिड आई मीट माई म्यूजिक क्लास। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। टोक्यो इज द कैपिटल ऑफ जापान, इज टोक्यो द कैपिटल ऑफ जापान, क्या बेटा, इंटेरोगेटिव। बेटे जो क्वेश्चन डी है इसके मैं आपको एक दो बता रहा हूं, हालांकि आपके पास बुक एक्सरसाइज होगी लेकिन ये करना आपने खुद है। प्लीज लीव दैम अलोन। ठीक है, ये कह रहा है कि नीचे जो सेंटेंसेस दिए हैं उनको बताइए वो डिक्लेरेटिव है, इंटेरोगेटिव है, इंपेरेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है। तो फर्स्ट क्या है, प्लीज लीव दैम अलोन, उन्हें अकेला छोड़ दीजिए, इट इज व्हाट, इट इज इंपेरेटिव, इट इज इंपेरेटिव, इट इज अ रिक्वेस्ट। नेक्स्ट 8th, बी अलर्ट, दिस इज एक्सक्लेमेटरी। नेक्स्ट बेटा यस, लेट्स डू मोर, बेटा इसको क्या करेंगे, डू योर सेल्फ, ये आपने खुद करना है, यू हैव टू कंप्लीट इट योर सेल्फ। ओके बेटा, नेक्स्ट दैट इज पेज नंबर 10। बेटा पेज नंबर 10, पेज नंबर 10 दैट इज बेस्ड ऑन नाउन, ये नाउन के ऊपर बेस्ड है। स्टेट वेदर द नाउन्स गिवन बिलो आर कॉमन, प्रॉपर एंड मटेरियल। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल पैरेट, व्हाट आई रिटन, कॉमन, टॉमी प्रॉपर, स्कूल कॉमन, साल्ट मटेरियल, सेंट थॉमस स्कूल, दिस इज अ पर्टिकुलर नेम अगेन प्रॉपर, स्टूडेंट कॉमन एंटिटी की बात हो रही है, गोल्ड इज अ मटेरियल, मिल्क इज ऑल्सो अ मटेरियल। A dash of singers are performing on the stage। बेटा ये जो आपको कलेक्टिव नाउन्स है क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स इन कलेक्टिव नाउन्स, यू माइट टेक हेल्प फ्रॉम दीज ऑल्सो, ये टेबल से आप हेल्प ले सकते हैं बेटा इन फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा करने के लिए। ठीक है, सो व्हाट इज द कलेक्टिव नेम ऑफ द म्यूजिशियन, यस म्यूजिशियन सिंगर्स का क्या होता है कलेक्टिव नेम, दैट इज द चोयर, दैट इज द शोयर। नेक्स्ट, a dash of the bees forced us to take shelter in the cave। डैश बेटा क्या आएगा, बीस के लिए यूज होता है स्वाम, SWARM, स्वाम,
a swarm of the bees forced us to take shelter in the cave. ठीक है बेटा, तो इस you might fill these sentences by checking from this table. ओके बेटा, नेक्स्ट बेटा पेज नंबर 11. पेज नंबर 11 कहता है फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम गिवन कॉमन नाउन्स वर्ब एंड एडजेक्टिव्स गिवन बिलो. बेटा ध्यान से समझिए. बेटा मैंने बताया नाउन इज व्हाट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज व्हाट. एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ द क्वालिटी, फीलिंग, स्टेट एंड सिचुएशन दैट वी कैन फील ओनली. वी कैन फील ओनली. नीदर कैन टच नॉर कैन सी. ना हम उसे देख सकते ना हम उसे छू सकते. ठीक है बेटा. तो सबसे पहले है ब्रदर. ब्रदर मीन्स भाई. यू माइट हैव सीन योर ब्रदर, बट भाईचारा, भाईचारा मीन्स ब्रदरहुड. यू माइट नॉट हैव सीन, यू फील दैट, you feel that is brotherhood. Okay, so what is the abstract of the brother? That is the brotherhood. Happy, happiness. Decide, decision. Humble, humility. Slave, slavery. Angry, anger. Laugh, laughter. Long, length. Obey, obedience. Cruel, cruelty. These are the abstract name. ये सभी क्या है बेटा? Abstract name है, which are formed with the help of what adjective, verb, noun, common noun. These are the abstract noun. बेटा पेज नंबर 16. पेज नंबर 16 कहता है रीराइट द सेंटेंसेस गिवन बिलो बाय रिप्लेसिंग द अंडरलाइन शेप विद वर्ड शेप विद सुटेबल प्रोनाउन. नीचे जो दिए गए हैं सेंटेंसेस हमने उन्हें देखना है. तो बेटा नीरज एंड आई रीच द कॉलेज ऑन टाइम. अब यहां पर नाउन क्या है? नीरज एंड आई तो ऑलरेडी क्या है बेटा? प्रोनाउन है. ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि जो वर्ड अंडरलाइन हुआ है आपको उसकी जगह कोई एप्रोप्रिएट प्रोनाउन यूज करना है. तो बेटा सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज द प्रोनाउन. एज वी हैव डिस्कस इन द लेक्चर ऑल्सो, प्रोनाउन क्या है? अ वर्ड दैट इज यूज एट द प्लेस ऑफ अ नाउन विच इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन. एक नाउन जो बार बार रिपीट होता है या वो नाउन जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी वर्ड का यूज होता है, दैट इज नोन बाय द नेम ऑफ प्रोनाउन. ठीक है, जैसे नीरज एंड आई की जगह मैं क्या यूज कर सकता हूं? आई कैन यूज वी ऑल्सो, लेकिन मैंने क्या लिखा? ही एंड आई भी लिखा है स्लैश करके. सो यू विल राइट एनी वन ऑफ बोथ ऑफ दिस. ही एंड आई रीच द कॉलेज ऑन टाइम. नेक्स्ट रीना एंड शालू, रीना एंड शाहिल. सो ही, शी एंड ही रीच्ड an hour late. Next, what do you know about Anand? तो क्या होगा बेटा? What do you know about him? Anand is what? Him. I wonder if Sachin will buy another new bicycle. I wonder if Sachin की जगह क्या यूज हो जाएगा बेटा? That is he. Arpan will be going to his friend's house this evening. अर्पण इस इवनिंग कहाँ जाएगा? अपने फ्रेंड के घर पर. अर्पण की जगह क्या यूज कर देंगे? दैट इज मस्कुलाइन. सो व्हाट विल बी देयर? दैट इज द ही. नेक्स्ट, मोनिका एंड जेनी डोंट लाइक पार्टनर. मोनिका एंड जेनी डोंट लाइक पार्टनर. बेटा ध्यान से समझिएगा, प्लूरल है. ईदर वी में यूज वी, या तो हम वी से यूज करें इसे. ठीक है, या तो हम इसके शुरू में क्या लिख दे? दैट इज वी, या फिर हम इसे दे से बना ले. दे डोंट लाइक क्या बेटा? पेनकॉक. दे डोंट लाइक पेनकॉक. ठीक है, नेक्स्ट, fill in the blanks with the yes correct pronoun given in the bracket. Hello dash is Julie speaking. May I speak to Seema? बेटा क्या होगा वहां पर? That is this. क्या होगा? This. ठीक है, नेक्स्ट, see that man एक्सक्लेमेशन है. he is climbing. अब समझिए ध्यान से, यहां पर वर्ड क्या है? दो वर्ड हैं, दैट इज ही और दे. अब बेटा आप समझिए ध्यान से, दे तो यूज नहीं हो सकता, इज हेल्पिंग वर्ब है वहां पर. हेल्पिंग वर्ब क्या है? सिंगुलर.
तो ऑब्वियसली वहां पर क्या आएगा, सब्जेक्ट भी जो वर्ड है दोनों में से, दैट इज सिंगुलर के लिए, तो वहां पर क्या यूज होगा, ही यूज होगा। तो मैंने ही पर टिक किया है। सेम सीक्वेंस में आप बाकी 6 सेंटेंसेस को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट बेटा, अंडरलाइन द प्रोनाउंस, underline the pronouns in the selection given below in the sentences given below and write their lines in the space provided। सबसे पहले क्या है बेटा, दिस इज द हाउस ऑफ मिस्टर काना। मैंने बताया था आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना, डिमॉन्स्ट्रेट मीन्स किसी चीज को दर्शाना। सो व्हाट, दिस, दैट, दोज, दीज, ये के सभी क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड। तो पहला सेंटेंस क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एशिया विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट हैज सेवरल रिवर्स। एशिया विच इज द, बेटा एशिया और फिर उसका रिलेशन बताया कॉन्टिनेंट से, मीन्स जो सबसे बड़ा है। सो इट इज व्हाट, इट इज द रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट सेंटेंस इज ऑल्सो रिलेटिव प्रोनाउन। व्हाट इज द रिलेटिव वर्ड ओवर देयर, दैट इज हु हैड एन एक्सीडेंट। ठीक है बेटा, in the same sequence you have to fill all the sentences। if you have any doubt kindly ask me, kindly leave a message। अब बेटा इसके नीचे जो लेट्स डू मोर लिखा है, फाइंड द एनसर्कल 8 प्रोनाउन, एनसर्कल 8 प्रोनाउन हिडन इन द वर्ड पजल एंड फ्रेम सेंटेंस आउट ऑफ देम। बेटा आपको ये अपने आप ढूंढना है, बिकॉज इट्स अ गेम फॉर यू। if you would be unable to complete it, definitely I'm going to help you। okay बेटा, पेज नंबर 20 बेटा, पेज नंबर 20 इज व्हाट, इट इज अबाउट द एडजेक्टिव्स। ठीक है, ये कहता है ऐड द करेक्ट एडजेक्टिव फ्रॉम द बॉक्स एंड रीराइट देम टू मेक देम मोर इंटरेस्टिंग। बेटा ऊपर हमें ब्रैकेट में एडजेक्टिव दिए हैं, 5 सेंटेंसेस हैं, हमें उन सेंटेंसेस में अमेंडमेंट करके उन्हें मोर इंटरेस्टिंग बनाना है। आर न्यू कुक्ड फूड, तो बेटा उसमें फूड क्या होता है, डिलीशियस। सो उसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं, वी माइट ऐड द वर्ड डिलीशियस। ठीक है बेटा, हम वहां पर डिलीशियस ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्या होगा, आर न्यू कुक्ड डिलीशियस फूड, कुक्ड डिलीशियस फूड। नेक्स्ट, द गेस्ट वर सर्व्ड फ्रेश फ्रूट्स, गेस्ट को क्या प्रोवाइड कराए गए, फ्रेश फ्रूट्स। और सेकंड का कहां है बेटा, ये रहा फ्रेश। थर्ड, डिड यू सी एनी ब्लैक बर्ड सिटिंग ऑन द ब्रांच। बेटा पहले क्या था, ये बर्ड था, अब मैंने बर्ड को क्या कर दिया बेटा, स्पेसिफाई कर दिया। बर्ड को मैंने क्या थोड़ा उसे क्या कर दिया बेटा, मैंने उसके बारे में डिस्क्राइब कर दिया। नेक्स्ट, द चाइल्ड वॉज लुकिंग फॉर फूड। अब बेटा चाइल्ड को मैंने क्या किया, चाइल्ड को मैंने थोड़ा सा यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया। द पुअर चाइल्ड वॉज लुकिंग फॉर फूड। द लाउड म्यूजिक, म्यूजिक था अभी तक, लेकिन अब वो क्या हो गया, दैट इज द लाउड। द लाउड म्यूजिक व्हाट was hurting our ears। next, few babies were born unhealthy। few means it is number, we might count, so what is it, will be adjective of number। put those cookies on the plate, put those cookies on the plate। बेटा ध्यान से समझिए, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दोनों एक जैसे होते हैं। अब जब दोनों एक जैसे होते हैं, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द टर्म, उन दोनों टर्म में डिफरेंस क्या है, चलिए उस डिफरेंस को समझते हैं। बेटा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ब, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में डिफरेंस क्या होता है ये समझ लेते हैं। बेटा व्हेन द डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड इज फॉलोड बाय अ नाउन, जब डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड के तुरंत बाद किसी नाउन का यूज हो जाता है, दैट इज व्हाट, मैंने बताया ना एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव वो है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्या करे, स्पेसिफाइड करे या उसे डिस्क्राइब करे। तो यहां पर क्या बेटा, इस डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड के तुरंत बाद क्या यूज हुआ, डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड ये, इसके तुरंत बाद क्या यूज हुआ बेटा, दैट इज अ नाउन। तो ये क्या होगा, दिस विल बी एडजेक्टिव।
लेकिन जब डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड, नीचे जो सेंटेंस हमने दिया है, जब डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड के कहीं बाद कहीं दूर किसका यूज हुआ हो, दैट इज द नाउन। नाउन कहां पर है, नाउन कहीं दूर यूज हुआ है, ठीक है। सो उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज द डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दोनों सेम है, वर्ड्स दोनों के सेम है, लेकिन दोनों के प्लेस ऑफ द नाउन में डिफरेंस आता है। जब डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड के तुरंत बाद किसी नाउन का यूज हो जाता है, वो क्या होता है, दैट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जब डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड के कहीं दूर किसी नाउन का यूज होता है, दैट इज व्हाट, दैट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है बेटा, चलिए वापस चलते हैं। सेंटेंस नंबर 2, पुट दोज कुकीज। ध्यान से समझिए बेटा, पुट दोज कुकीज ऑन अ प्लेट। तो बेटा ये क्या है, दिस इज डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड, और इसके तुरंत बाद क्या यूज हुआ है, दैट इज द नाउन। ये क्या है बेटा, दिस इज नाउन। तो ये क्या होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इट विल बी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, आगे चलते हैं। शी वॉज द फर्स्ट टू फिनिश द रेस। शी वॉज द फर्स्ट टू फिनिश द रेस। वो फर्स्ट थी जिसने रेस को फिनिश किया। ठीक है बेटा, इट इज व्हाट, इट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नेक्स्ट बेटा, द बॉय, दिस बॉय कॉन्ट्रीब्यूट। बेटा देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड के तुरंत बाद क्या यूज हुआ है, दैट इज द नाउन, तो इट विल बी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। द पंपकिन कोच वॉज ड्रॉन बाय 6 हॉर्स, दैट इज नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। दीज शूज फिट मी वेरी वेल। फिट मी दीज शूज। बेटा ध्यान से समझिए, पहले डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड, उसके तुरंत बाद क्या यूज हुआ है, दैट इज द नाउन, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट, स्टेट वेदर द अंडरलाइन एडजेक्टिव्स आर डिस्ट्रीब्यूटिव, इंटरोगेटिव एंड पजेसिव। डिस्ट्रीब्यूटिव जहां पर ईच एंड एवरी के लिए कोई स्टेटमेंट कहा जाए, उसके बाद इंटरोगेटिव, कुछ क्वेश्चन पूछा जाए। इंटरोगेटिव लेकिन होगा कब, इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी होता है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है। तो उसमें बेटा मैं आपको बताऊं क्या होता है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव और इंटरोगेटिव प्रोनाउन में। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में आप, यस, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में इंटरोगेटिव वर्ड के तुरंत बाद क्या यूज होता है, दैट इज द नाउन। और यहां पर अगर इंटरोगेटिव प्रोनाउन है तो वहां पर इंटरोगेटिव वर्ड के कहीं दूर नाउन का यूज होता है। जैसे देखिए, इनमें इंटरोगेटिव सेकंड सेंटेंस है, कैन यू टेल मी विच मेथड इज द बेस्ट। ध्यान से समझिए, कैन यू टेल मी, ऑल्दो इट इज स्टार्टिंग विद अ हेल्पिंग वर्ब मोडाल, मोडाल से शुरू हो रहा है, क्वेश्चन मार्क है। अब हमें पता चल जाता है भाई एडजेक्टिव है, लेकिन हमने समझना क्या है, हमने समझना है वास्तविकता में जो उसकी टेक्निक है, टेक्निक क्या है। तो जब इंटरोगेटिव वर्ड के तुरंत बाद क्या यूज हो रहा है, दैट इज अ नाउन। मेथड इज व्हाट बेटा, मेथड इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो नाउन का जब कोई इंटरोगेटिव वर्ड, WH फैमिली का वर्ड फॉलो किया जाता है किसी नाउन के द्वारा, दैट इज कॉल्ड बेटा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 5 देखिए बेटा, आई वंडर हुज लंच बॉक्स इज दिस। आई वंडर हुज लंच बॉक्स इज दिस। ध्यान से समझिए, अब ये जो सेंटेंस है बेटा, ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है, ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है, हुज लंच बॉक्स। ठीक है, तो इंटरोगेटिव वर्ड के तुरंत बाद किसका यूज हो रहा है बेटा, दैट इज द नाउन। हुज हाउस, ये भी इंटरोगेटिव है। उसके बाद विच टीम डू यू यस थिंक विल विन द मैच, इंटरोगेटिव। एवरी चाइल्ड इज स्पेशल टू देयर पेरेंट, ये क्या है बेटा, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव क्यों है, यहां पर एवरी चाइल्ड के लिए कहा गया है, सो इट इज व्हाट, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग टू ईच एंड एवरी चाइल्ड ऑफ द वर्ल्ड। कंट्री नहीं, वर्ल्ड में जो हर एक बच्चा है उसके लिए स्टेटमेंट है, सो इट इज व्हाट, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट, राइट द एडजेक्टिव्स फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। नीचे कुछ मैंने क्या बेटा, कुछ दिए गए हैं, नाउन भी है उनमें से, अब उनसे हमने क्या बनाना है, एडजेक्टिव बनाना है। वर्ब नाउन से हमने क्या बनाना है, एडजेक्टिव। तो डेंजर का एडजेक्टिव क्या होता है, डेंजरियस, खतरा, खतरनाक। ठीक है, आर्टिस्ट, आर्टिस्टिक, रीजन, रीजनेबल, होप, होपफुल,
hate hateful, duty dutiful, comic comical, talk talkative, nature natural, sense sensible. ठीक है, so this is what these all are adjective which are formed by these words. ठीक है बेटा, next fill in the blanks, fill in the missing adjectives. बेटा इस टेबल को आप खुद फिल करेंगे with the help of what, with the help of the table given to you, and actually I have solved it but you will do it yourself. ठीक है, ऐसे ही उसके बाद जो बी पार्ट है, टिक करेक्ट, यस टिक द करेक्ट एडजेक्टिव टू कंप्लीट द सेंटेंस. सी इज प्रेटी. ध्यान से समझिए, सी इज प्रेटी आएगा या प्रेटियर आएगा. यहां पर देन का यूज हुआ, इट मीन सी इज कंपेयरिंग टू एनी वन अदर, उसका कोई कॉम्पिटिटर है. और मैंने बताया जब आपके पास डिग्री आती है कौन सी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, तो कंपैरेटिव में क्या आता है, सी इज प्रेटियर, सी इज प्रेटियर देन हर सिस्टर. मीरा इज आ नाइस गर्ल. यहां पर सिंपली एक स्टेटमेंट कहा गया है मीरा के बारे में. ठीक है बेटा, आगे चलते हैं. प्रिया इज आ, देखिए बेटा, प्रिया इज आ गर्ल इन द क्लास. ध्यान से समझिए बेटा, अगर क्लास से कंपेयर किया जा रहा है, क्लास से कंपेयर नहीं किया जा रहा है, इसे क्या किया जा रहा है बेटा, इस सेंटेंस में उसे बताया जा रहा है कि क्लास में प्रिया एक इंटेलिजेंट लड़की है. सिंपली यहां पर क्या यूज हो रहा है, प्रिया इज. अगर यहां पर क्या होता बेटा, आ की जगह क्या होता, द, तो हम क्या यूज करते, जो मैंने टिक किया है, दैट इज मोस्ट इंटेलिजेंट. लेकिन यहां पर दा तो नहीं है. जब भी सुपरलेटिव एडजेक्टिव आता है बेटा, सुपरलेटिव एडजेक्टिव से पहले हमेशा दा का यूज होता है, लेकिन दा वहां पर यूज नहीं है. तो अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको हम दोबारा करेंगे. क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा प्रिया इज द इंटेलिजेंट, प्रिया इज अ इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास. समझ आया बेटा. मर्लिन स्पीक इंग्लिश वेल. रसिया इज द, ध्यान से समझिए, द यूज हुआ है तो मतलब ये क्या है, दिस इज सुपरलेटिव डिग्री. तो रसिया इज द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट, रसिया इज द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट. नेक्स्ट, टेक द शॉर्टर ऑफ टू रूट्स. ध्यान से समझिए, टेक द शॉर्टर ऑफ टू यूज. यहां पर जो द का यूज हुआ है वो किसे बताने के लिए, दोनों रूट के बीच में कंपैरिजन हो रहा है. और जब दो लोगों के या दो थिंग्स के बीच में कंपैरिजन होता है तो हम वहां पर क्या यूज करते हैं, दैट इज द कंपैरेटिव डिग्री. ठीक है बेटा. नाउ प्रैक्टिस टाइम 4. इसे आप खुद ट्राई करेंगे, नहीं होता देन आई विल बी देयर. लेट्स डू मोर. डू द अबव आंसर्स योरसेल्फ, इट विल बी फन फॉर यू. ठीक है बेटा. नेक्स्ट, दैट इज पेज नंबर 44. पेज नंबर 44 कहता है राइट द हाईलाइटेड वर्ब्स आर ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव इन स्पेस प्रोवाइडेड. बेटा ध्यान से समझिए, अ वर्ब दैट नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट सेंस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव. और एक वर्ब जिसे अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए, मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी एडजेक्टिव की जरूरत नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन बाय द नेम ऑफ इंट्रांजिटिव. तो हम ध्यान से समझेंगे. थर्ड सेंटेंस, लीव द कैट अलोंग और इट माइट स्क्रैच यू. देखिए यहां वर्ब का जो मीनिंग है वो किसके ऊपर, कहीं ना कहीं यू के ऊपर डिपेंड है. वो पता कर रही है, वो स्पेसिफाइड कर रही है, इट विल व्हाट, इट विल यस इट विल गिव हार्म टू यू. तो इट इज व्हाट, ट्रांजिटिव. अब इंट्रांजिटिव के बारे में हम देखते हैं. सम एंट्स फाइट फायरसली. बेटा सेंटेंस नंबर 5, सम एंट्स फाइट फायरसली. कुछ चींटियां बड़ी तेजी से लड़ाई करती हैं या वो हमला कर देती हैं. अब ध्यान से समझिए बेटा, सम एंट्स फाइट फायरसली. बेटा वर्ब क्या है, फाइट है, और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, फायरसली. लेकिन वास्तव में बेटा यह ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या है, ये एक एडजेक्टिव है. और जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं उनमें कई बार क्या होता है, एडजेक्टिव या एडवर्ब का यूज हो जाता है. तो हमने कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई इसके बाद तो ऑब्जेक्ट का यूज हुआ, ये स्पेसिफाइड कर रहा. नो, इट इज व्हाट, इट इज एन एडजेक्टिव. सो इट विल बी व्हाट, इट विल बी अ इंट्रांजिटिव वर्ब. नेक्स्ट,
सुनील इज समटाइम्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज, वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज, कई बार सुनील को क्या, वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज, कोई ऑब्जेक्ट नहीं, इट इज व्हाट, इट इज इंट्रांजिटिव। नेक्स्ट, ही ऑलवेज कीप्स हिज मनी, ट्रांजिटिव। दे हैड नथिंग टू डू सो दे जस्ट सेट, इंटेरोगेटिव, ठीक है। दोज पीपल पेंटेड देयर हाउसेस ब्लू, ठीक है, तो दिस इज व्हाट, ट्रांजिटिव। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, बेटा यू विल कंप्लीट इट योर सेल्फ, यू हैव द टेबल, ठीक है, यू विल कंप्लीट इट योर सेल्फ। पेज नंबर 46, द ट्रक वॉज वैल्यूड रुपए 2 लाख, द ट्रक वॉज वैल्यूड फॉर रुपए 2 लाख, ठीक है बेटा। तो यहां पर वैल्यू की जगह ये कह रहा है एड सफिक्स और प्रेफिक्स, हमने सफिक्स और प्रेफिक्स ऐड करना है, तो मैंने इसमें क्या, मैंने इसमें सफिक्स ऐड किया, दैट इज ईडी, वैल्यूड, डी ऐड किया। द ट्रक वॉज वैल्यूड रुपए 2 लाख, ट्रक की जो वैल्यू है वो 2 लाख बताई गई। नेक्स्ट, द रूम वॉज डार्कन, द रूम वॉज डार्कन, डार्क में मैंने सफिक्स ऐड किया अगेन, तो इट वॉज डार्कन। नेक्स्ट, मॉर्निंग एक्सरसाइज इज वेरी यूजफुल फॉर अस, राइटिंग प्रैक्टिस एनरिच, बेटा रिच है उसको मैंने क्या, एक प्रेफिक्स एन ऐड कर दिया, तो एनरिच आर राइटिंग स्किल्स। दिस इज द ब्राइटेड रूम, दिस इज द ब्राइटेड रूम। द साइंटिस्ट रीडिस्कवर, डिस्कवर का मैंने क्या कर दिया बेटा, रीडिस्कवर द वाटर ऑन द मून, द वाटर ऑन द मून। नेक्स्ट, पेज नंबर 48 है बेटा, अंडरलाइन द कॉम्प्लीमेंट्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड राइट वेदर दे आर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन द स्पेस गिवन बिलो, ठीक है। सक्सेस मेड हिम मैड, सक्सेस मेड हिम मैड, तो यहां पर सक्सेस क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और इसका क्या है बेटा, इसको सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया। पॉल इज व्हाट बेटा, पॉल इज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, दिस इज ऑल्सो व्हाट, पॉल इज यूजिंग एज अ सब्जेक्ट। नेक्स्ट, ही फाउंड द गर्ल स्वीट, द गर्ल स्वीट, दिस इज व्हाट, दिस इज ऑब्जेक्ट। वी फाउंड हिम डिसऑनेस्ट, वी फाउंड हिम dishonest, this is what, object. Our neighbors dogs are dangerous, again subject, ठीक है बेटा, you will complete it yourself. Let's do more, ये भी आप खुद ही complete करेंगे, ठीक है बेटा। so, अभी हमने कहाँ तक complete किया है, अभी हमने जो टॉपिक बेटा कंप्लीट किए हैं या कवर किए हैं वो क्या क्या, सेंटेंसेस कंप्लीट किया है, नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, एंड देन वी हैव कंप्लीटेड द वर्ब, वर्ब हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ तक की बुक एक्सरसाइज आप फिल करें, कोई डाउट है मैसेज छोड़ें, ठीक है बेटा। कंप्लीट योर वर्क एंड स्टडी एज यू कैन, एज बेटर, ओके बेटा। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। इफ यू हैव एनी डाउट काइंडली लीव अ मैसेज। थैंक यू, हैव अ गुड डे, एंजॉय योर स्टडीज।